ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان دل میں لے کر جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کی بجائے دولت کی عوض لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی عوض ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کو بڑا حیران اور پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کو اپنی دکان کے پیچھے پیچھے تہہ خانے میں لے گیا جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کیونکہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے نماز ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کو کہا، سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی ترکیب پسند آئی۔ سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے تاکہ سلطان چاہتا تھا کہ صحت بالکل تندرست رہے کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کی نظر آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا یہ وہی بزرگ تھا
जो उस कुएं पर बच्चों को नहाने के भी पैसे ले रहा था। ये माजरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये बुजुर्ग चाहता क्या है। उधर ये बच्चों से सिर्फ नहाने के 10 सोने के सिक्के ले रहा था और इधर ये बच्चों को मुफ्त खाना खिला रहा है। आखिर किसके पीछे क्या राज है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ने लगा कि आखिर उससे इस सवाल का जवाब पूछा जाए। इतने में सुल्तान उसकी तरफ बढ़ने लगा तो पीछे से उस ताजी ने सुल्तान को बुलाया और कहा, हुजूरे वाला, मुझे शक है कहीं लोग आपको पहचान न लें, क्योंकि इस बाजार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पहले मिल चुके हैं। अगर आप किसी को पता चल गया आप सुल्तान मुअज़्ज़म हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि दुश्मन हर जगह मौजूद हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा से वो सवाल अपने दिल में लिए वापस तहखाने में चला गया। अब सुल्तान ने दिल में सोचा कि जब वापसी पर रवाना होंगे तो उस वक्त उस बुजुर्ग से सवाल पूछूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तहखाने में चला गया और नाश्ता करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए घोड़ों पर सवार हुए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार से निकला तो अपने सिपाहियों को कहा, तुम बाजार के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं चंद लम्हों के बाद आ रहा हूँ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा बाजार में लौटा और एक दुकानदार के पास गया और पूछा कि इस जगह एक बुजुर्ग बच्चों को खाना खिला रहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो बुजुर्ग कहाँ रहता है और आखिर वो उन बच्चों को मुफ्त खाना क्यों खिला रहा था। तो उस ताजी ने कहा, ए भाई, मुझे नहीं पता, ये भी बड़ा ही अजीब आदमी है, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आती। कई सालों से गरीबों और यतीमों के बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा अपने सवाल को दिल में लिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। वक्त गुजरता रहा और एक दिन फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इत्तेफाक से सुल्तान का गुजर एक गांव से हुआ तो अचानक उस गांव में शोर आने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाही को भेजा, जाकर मालूम करो आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना शोर कर रहे हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ी देर के बाद सिपाही ने आकर बताया, हुजूर वाला, इस गांव के एक बड़े ताजिर के घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया और चोर भी अभी भाग कर जा रहा है। गांव वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना घोड़ा दौड़ाया ताकि उस चोर को पकड़ सके। आपका कमांडर आपको मना करता रहा कि हुजूर, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप इस भीड़ के अंदर न जाएं, लेकिन सुल्तान ने अपना घोड़ा दौड़ाया। अब चलते चलते सुल्तान उस बुजुर्ग को एक जंगल के बीच में जाकर पकड़ा। उस बुजुर्ग के पास घोड़ा काफी ताकतवर था, लिहाजा सुल्तान को उसको पकड़ने में बहुत वक्त लग गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग के जब मुंह से भेस हटाया तो ये वही बुजुर्ग था जो कुएं पर बच्चों से सिक्के ले रहा था, और वही बुजुर्ग बाजार में बच्चों को मुफ्त खाना खिला रहा था, और वही बुजुर्ग अब उस ताजिर के घर से सोना चोरी करके ले जा रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये बुजुर्ग के पीछे क्या राज है। जहाँ भी जाता हूँ हर बुराई के पीछे भी यही नजर आता है और हर अच्छाई के पीछे भी यही नजर आता है। आखिर ये बुजुर्ग है कौन। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, तुम मुझे अब सच सच बताओ कि ये सब तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान एक राज है, ये तुम्हें कभी नहीं बता सकता। सुल्तान ने कहा, एक तरफ तुम मासूम बच्चों से बाहरी घास लेकर उनको नहाने देते हो और दूसरी तरफ तुम लोगों के घरों से चोरियां करते हो, और अब कहते हो ये मेरे अल्लाह और मेरे दरमियान पर्दा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। सुल्तान अभी यही बात कह रहा था कि अचानक से एक तीर निकला और उस बुजुर्ग और सुल्तान के दरमियान में से गुजरकर एक दरख्त पर जा लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ध्यान जब उस तीर की तरफ हटा तो वह बुजुर्ग फिर से भागा और घोड़े पर दौड़कर वहां से भागने में कामयाब हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा हैरान था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि
इसके पीछे कोई राज है। मैं तीसरी मर्तबा इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और ये मुझसे भाग निकलता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह महल वापस आ गया और ये सोचने में मसरूफ हो गया वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है और जब तक मैं उस राज पर पर्दा नहीं उठाऊंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह महल से अपने घोड़े पर रवाना हुआ और उस कुएं की तरफ चला गया। कुएं और महल के दरमियान बहुत सा फासला था। सुल्तान ने अपने घोड़े को दौड़ाए रखा और एक दिन के सफ़र के बाद सुल्तान वहां पहुंच गया। जब सुल्तान वहां पहुंचा तो देखा वो बुजुर्ग फिर से कुएं से पानी निकालकर हौज में डाल रहा था और बच्चे नहा रहे हैं। और जब बच्चों ने जी भर के नहा लिया तो बुजुर्ग ने एक एक बच्चे से 10-10 सोने के सिक्के लिए और उनको तब जाने दिया। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये चुप कर सारा मंजर देख रहा था। फिर से बुजुर्ग ने रकम अपनी थैली में डाली और घोड़े पर सवार हो गया। अब वो बुजुर्ग आगे जा रहा था और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वह बुजुर्ग एक जंगल के बीच में गया। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि ये जंगल के बीच में क्या करने आया है। फिर सुल्तान ने सोचा कि शायद ये सोना इस जंगल में छुपाता होगा, लेकिन थोड़ी देर में सुल्तान ने देखा कि उस आदमी ने एक जगह से झाड़ियां हटाई और उन झाड़ियों के नीचे से एक सुरंग मौजूद थी। वो बुजुर्ग उस सुरंग के अंदर चला गया और फिर से सुरंग का दरवाजा बंद करके वो बुजुर्ग समझा कि शायद उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देख रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े को बांधा और उस सुरंग के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर सुरंग के अंदर चला गया। जब सुल्तान दाखिल हुआ तो वह बुजुर्ग हिसाब लगा रहा था। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन सर पर पहुंच गया और कहा, अब तुम्हें मैं भागने की इजाजत नहीं दूंगा, तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो तब तुम्हारी जान बख्शूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा, ये जान मेरी है कब तुम मुझे बख्शोगे, ये जान दी भी अल्लाह ने है और लेगा भी वही। तुम कौन होते हो मुझसे मेरी जान लेने वाले। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये बुजुर्ग क्या चीज़ है कि इसको अल्लाह पर इतना यकीन है और फिर दूसरी तरफ हर बुराई के पीछे भी यही होता है। तो सुल्तान ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो उसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा मकसद मजलूमों की मदद करना है। सुल्तान ने कहा, तुम अपनी बात मुझे तफसील से बताओ, मुझे तुम्हारी एक भी बात की समझ नहीं आ रही। तो उस बुजुर्ग ने कहा, तुम बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग कांपने लगा और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म आप और यहाँ। तो सुल्तान ने कहा कि मेरा काफिला एक दिन यहाँ से गुजरा तो हमने आपके कुएं पर पानी पिया तो आपने हमें पानी पीने के बदले में एक सिक्का भी नहीं लिया। जब तुम उस हौज में नहाने वाले बच्चों से तुम 10-10 सिक्के ले रहे थे, आखिर इसके पीछे क्या राज है। और फिर तुम बाजार में बच्चों को मुफ्त खाना खिला रहे थे। और तीसरी बात, तुमने उस गांव में चोरी क्यों की, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी थी वो भी मैं था। उस बाजार में भी मैंने देखा था। वो बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म चंद साल पहले इस बाजार पर हमला हुआ और उस हमले की वजह से बहुत सारे ताजिर मारे गए और जैसे ही दूसरे ताजिरों ने देखा कि उन दुकानों के वारिस नहीं, उन्होंने शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्जा करके सब चीज़ें अपने कब्जे में ले ली। अब उन शहीद ताजिरों के छोटे छोटे बच्चे और बीवियां भूख से मर रही थी। जब मैंने ये सारा मंजर देखा तो मैंने अपने दिल में सोचा कि इस दुनिया में हम करने क्या आए हैं। मैंने अपनी दुकान का जितना भी मुनाफा होता था मैं उन ताजिरों के बच्चों के खाने का बंदोबस्त करता, लेकिन मेरी दुकान छोटी थी, उसमें इतना मुनाफा नहीं आता था कि उनसे उन तमाम का पेट भर सकूं। एक दिन मैं सोचते सोचते इस कुएं पर जा पहुंचा तो देखा कि हौज में बच्चे कुएं से पानी निकाल कर उसमें डालते हैं और फिर नहाने लग जाते हैं। जब मैंने उन बच्चों को कहा, अगर मैं तुम्हें पानी कुएं से निकाल कर नहीं लाऊं तो क्या तुम उसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो। तो उन्होंने कहा, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमारे बाबा बहुत अच्छा कमाते हैं। जब मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला ये बच्चे इन तमाम ताजिरों के हैं जिन्होंने
शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्जा कर रखा है। तो मुझे उसी वक्त ख्याल आया और मैंने उन्हें कहा, अगर तुमने आज के बाद इस हौज पर नहाना है तो तुम्हें एक बच्चे को 10 सिक्के देने होंगे। बच्चों ने कहा, ठीक है, और इसी वजह से मैं उन बच्चों से 10 सोने के सिक्के लेता हूँ। तो सुल्तान ने कहा, क्या ताजिर अपने बच्चों को इतनी रकम देते हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चों के वो नहाने की पसंदीदा जगह है और वो बच्चे बजीद अपने घर से सिक्के लेकर आते हैं। और फिर उस बुजुर्ग ने कहा, वहाँ से जमा होने वाली रकम लेकर सीधा बाजार में जाता हूँ, उससे अनाज और खाने पीने की चीज़ें खरीद कर थोड़ा थोड़ा उन ताजिरों के घरों में जाकर देता हूँ और बाकी जो यतीम बच्चे हैं उनको बाजार में खाना खिलाता हूँ। फिर सुल्तान ने कहा, यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम उस ताजिर के घर में डाका क्यों डाला? तो बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, उस ताजिर ने जिस दुकान पर कब्जा कर रखा है उस ताजिर की बेटी जवान हो चुकी है, लेकिन उसकी माँ के पास उसे रुखसत करने के लिए एक सिक्का भी मौजूद नहीं था। जब मुझे पता चला कि उसे उस ताजिर को कारोबार में बहुत सारा मुनाफा आया, तो मैंने इसी वक्त सोच लिया वो सारा नफा मैं उसे छीन कर उस ताजिर की बीवी को दूंगा और उससे वो अपनी बेटी को रुखसत करेगी। और इसलिए मैंने अपनी जान पर खेलकर उस ताजिर के घर में डाका डाला और वो रकम चुरा कर ले गया। और जाकर वो रकम मैंने उस ताजिर की बीवी को दी जिसकी दुकान पर उस दूसरे ताजिर ने कब्जा कर रखा था। और उस ताजिर की बीवी ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो बड़ा हैरान हुआ और कहा, मैं तो तुम्हें बड़ा मुजरिम समझ रहा था, लेकिन हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हकीकत से पर्दा उठा दिया। अब सुल्तान ने कहा, बेशक तुम्हारा मकसद सही है, लेकिन तरीका गलत है। अगर तुम उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में आते तो तुम्हें ज़रूर इंसाफ मिलता और मैं उन ताजिरों को उनकी दुकानें लेकर उनके हकदारों को ज़रूर दिलाता। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तक पहुँचते पहुँचते उधर ताजिरों के बच्चे भूख से मर जाते, तो फिर आपके पास आने का क्या फ़ायदा? उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब के बाद कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वापस आकर कमानदारों को हुक्म दिया कि जिन जिन ताजिरों की दुकानें छीनी वो दुकानें वापस लेकर उन ताजिरों के बच्चों और बीवियों के हवाले कर दो और ताजिरों को काजी की अदालत में हाजिर करो ताकि काजी साहब उसको सजा दे सके। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग को शाही खजाने से चंदा लगा दिया ताकि वो हर जगह गरीब बच्चों को खाना खिला सके। और उन कमानदारों ने ताजिरों से वो दुकानें लेकर शहीद ताजिरों की बीवी बच्चों के हवाले कर दी और उन जालिम ताजिरों को काजी साहब ने सजा सुना दी। और इस तरह सुल्तान की कोशिशों की वजह से जुल्म का खात्मा हो गया, इंसाफ की बुनियाद रखी और फिर सारी ज़िंदगी सुल्तान का मकसद इंसाफ कायम करना था। और इस मुश्किल सफ़र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल की। उम्मीद है कि आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह